منصوبہ بندی سے پیدا کیا گیا آٹا بحران، ذمہ دار نکلے سیاستدان اور افسران۔ انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں آٹا بحران کے ذمہ دار بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کا محکمہ خوراک کے افسران کے تقرر و تبادلے سے متعلق کردار بھی رپورٹ میں درج۔ محکمہ خوراک پر سیاسی دباؤ اور انتظامی نااہلی کے باعث آٹا بحران پیدا ہوا۔ حج 2020 مزید مہنگا، سعودی حکومت نے عازمین حج پر 410 ریال کی اضافی فیس لاگو کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی عازمین حج کو 300 ریال ویزا فیس دینا ہوگی۔ ویزا فیس کے ساتھ 110 ریال انشورنس کی مد میں ادا کرنا ہوں گی۔ سعودی عرب نے وزارت مذہبی امور کا ویزا فیس اور انشورنس ختم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ بہار، شائقین خوشی سے سرشار، اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا۔ صدر عارف الوی نے بھی میچ دیکھا، چیئرمین پی سی بی نے استقبال کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ دوسرے میچ کے موقع پر بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری۔ برطانوی حکومت کی پاکستان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری پر اراکین پارلیمنٹ بھی خوش۔ پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی مثبت پالیسیز کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ مانچسٹر کے معروف دینی ادارے جامعۃ المنتظر نے نیا تعلیمی منصوبہ متعارف کرا دیا۔ شرکاء کو تعلیمی منصوبے ون ویژن کانسیپٹ کے حوالے سے بریفنگ۔ ہر ادارے میں پرائمری ایجوکیشن کا نظام رائج کیا جائے گا۔ ڈاکٹر سید باقر نقوی کا خطاب۔ برطانیہ 31 جنوری کو یورپی یونین سے راہیں الگ کرنے کو تیار۔ یورپی شہری برطانیہ میں اور برطانوی شہری یورپ میں 31 جنوری سے پہلے اپنے قانونی حقوق کے لیے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں۔ ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ یورپی رکن پارلیمنٹ شفق محمد نے متنازع بھارتی قوانین کے خلاف قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کر دی۔ کئی یورپی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے تائید۔ کشمیر ای یو کونسل نے بھی بھارتی بل کے خلاف قرارداد کو خوشائن قرار دے دیا۔ ناروے کی دارالحکومت اوسلو میں کشمیر سیمینار، چیئرمین سینٹ خارجہ امور کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سید اور ڈاکٹر ماریہ سلطان کی خصوصی شرکت۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، نارویئن وزیر اعظم کا اپنے خطاب کا مطالبہ۔ امریکی ریاست میریلینڈ کے اسپیشل ضمنی انتخابات میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر جے جلیسی جیت کے لیے پرامید۔ کہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی ساتھ دے تو وہ امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ جے یو آئی متحدہ عرب امارات کی جانب سے شارجہ میں مفتی فضل غفور کے اعزاز میں ظہرانہ کارکنان کی بھرپور شرکت۔ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت چند مہینوں کی مہمان ہے، مقررین کا خطاب۔ بھارت کی حمایت کا عبرتناک انجام، مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تازہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ کلین شیف عمر عبداللہ کی لمبی داڑھی کے ساتھ تصویر نے ہلچل مچا دی۔ گزشتہ سال اگست سے زیر حراست عمر عبداللہ 70 سال کے بزرگ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور رنگوں اور خوشبوؤں کے شہر پیرس میں گرینڈ فیشن شو کا اختتام۔ فیشن شو میں دنیا بھر سے معروف ڈیزائنرز نے اپنے برانڈز کی رونمائی کی۔ آخری روز اطالوی برانڈ کے ملبوسات پہنے ماڈلز نے جلوے بکھیرے تو دیکھنے والے پلکیں جھپکنا ہی بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی ناظرین، گزشتہ چند دنوں کے دوران پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جیسا ملک جو اجناس کا گودام کہلاتا ہے،
ऐसे मुल्क के अवाम आटे की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। लोगों को आटा दस्तयाब नहीं था, अगर कहीं मिल रहा था तो आवाम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर थे। पूरे मुल्क में भूचाल की कैफियत थी। अब ये इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में आटे का बहरान जानबूझकर पूरी मंसूबाबंदी के साथ पैदा किया गया। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इस मसनूई बहरान के पीछे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मुलव्वस निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी गई रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब ऑफिस का महकमा खुराक के ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले से मुतालिक किरदार भी दर्ज है। आटे का बहरान पैदा करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया, आइए आपको दिखाते हैं। ज़राए का कहना है कि महकमा खुराक पर सियासी दबाव और इंतजामी नाअहली की वजह से आटा बहरान पैदा हुआ। नवंबर तक 1550 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली गंदम को 1950 रुपए तक मंसूबाबंदी से पहुंचाया गया। 2 माह कबल मार्केट में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी, लेकिन दिसंबर 2019 में गंदम मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। गुज़श्ता माह लाहौर की फ्लोर मिल्स का कोटा 50 से कम करके 45 बोरी और रावलपिंडी की फ्लोर मिल्स का कोटा 25 से बढ़ाकर 30 किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर में ही ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 1550 से बढ़कर 1625, बाद में 1950 रुपए फीमन हो गई। सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद भी फ्लोर मिल्स के कोटे बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला करने में नाकाम रहे। चक्की मिल मालिकान को साफ शुदा गंदम 2100 फीमन मिलने पर चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा किया। जिला इंतजामिया की जानिब से आटा बहरान पर काबू के लिए कोई इकदाम न किए गए और वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बाद अफसरान और सियासी अफराद एक्शन में आए। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को इरसाल, जबकि पंजाब में बहरान से मुतल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जा चुकी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के घर की ज़ियारत गरीब अवाम के लिए ख्वाब बन गई। हज 2020 मज़ीद महंगा हो गया। सऊदी अरब ने 410 रियाल की इजाफी फीस लागू कर दी। पाकिस्तानियों को अब हज की अदायगी के लिए तकरीबन 5.5 लाख रुपए अदा करना होगा। राय के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने वीजा और इंश्योरेंस फीस खत्म करने की दरखास्त की थी, जिसको सऊदी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि फीस का इत्तलाक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक पर होगा। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर हज अखराजात में कमी के लिए सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में हिफाजत से इकदाम शुरू कर दिए गए। पाकिस्तान में मौजूद 4 चीनी बाशिंदों को वायरस के शुबे में अस्पताल दाखिल कर दिया गया। चारों अफराद चंद रोज कबल चीनी शहर वुहान से आए थे। वजारत खारजा ने चीन में मुकीम और सफर करने वाले पाकिस्तानियों के इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सरासीमगी फैला दी है। खतरनाक वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान ने हिफाजती तदाबीर शुरू कर दी। मुल्तान और लाहौर में 2 चीनी बाशिंदों का कोरोना वायरस के इलामात के पेश नजर इलाज शुरू कर दिया गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एक चीनी बाशिंदे को दाखिल किया गया है, जो चीनी शहर वुहान से गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक चीनी बाशिंदे मिली को नज़ला, जुकाम, खांसी और तेज बुखार है। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया। मुल्तान में भी 40 साला चीनी बाशिंदे को कोरोना वायरस के शुबे में नश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। खून के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज में इब्तदाई तौर पर नज़ला और जुकाम की अलामात सामने आई हैं। महकमा सेहत ने शहर में तमाम चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग का फैसला भी कर लिया। हुकूमत ने वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे डॉक्टर पलीथा माही पाला के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, चीन से आने वाले मुसाफिरों की खुद स्क्रीनिंग की और वायरस से बचाव के लिए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। कहा सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वजारत खारजा ने चीन में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक चीन में तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ वुहान शहर में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा रिहाइश पजीर हैं। 800 ताजिर भी चीन में रहते हैं, जबकि 1500 आते जाते रहते हैं। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने कहा है कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली पर खुशी का इजहार किया है। सियाहत के हवाले से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बरतानिया की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान में सियाहत के फरोग और इससे मुताल्लिक इंडस्ट्री में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा शाही जोड़े के दौरे से पाकिस्तान की सियाहत को फायदा हुआ। पाकिस्तान में बड़े मज़ाहिब के मराकज़ हैं। सिख पाकिस्तान को अपना किबला मानते हैं। रिलीजियस टूरिज्म जो है उससे मुतालिका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी जो है उसको अलाइन की है और उसको उजागर किया है कि जी
وہاں پر ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بھی جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے اس میں بھی انہوں نے فورن انویسٹرز کو ویلکم کیا ہے۔ نفیس زکریا نے کہا پاکستان کو ایشیا میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، نئی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری کی وجہ سے برطانیہ کے کاروباری حضرات کو بھی فائدہ ہوگا، برٹش پاکستانی بھی ٹریول ایڈوائزری کے نتائج سے مستفید ہو سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ برطانیہ میں وہ بزنس مین، وہ لوگ جو ٹورسٹ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے دیکھتے ہیں، ان کو پاکستان میں بے تحاشا اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ برطانیہ گورنمنٹ نے جو ہے یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے جو کہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں ہے۔ اس سے بزنس کو فروغ ملے گا، اس سے ٹورزم جو ہے جو برطانیہ سے ہوگا اس کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو برطانیہ کو برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ممالک بھی جو ہے یقیناً پاکستان کی طرف جو ہے اپنی توجہ منظور کریں گے۔ نفیس زکریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ برٹش ایئر ویز کے علاوہ دیگر ممالک کی ایئر لائنز بھی پاکستان جا رہی ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے بتایا کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو برطانوی ایوانوں تک پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ غلام سنوان، 92 نیوز، لندن۔ دینی ادارے جامعۃ المنتظر کی جانب سے مانچسٹر میں ون ویژن کانسیپٹ متعارف کرانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے تحت ہر دینی تعلیم کے ادارے میں پرائمری ایجوکیشن کا نظام بھی رائج کیا جائے گا۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں۔ جامعۃ المنتظر کی ون وین تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت ڈاکٹر سید کاظم علی نے حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر سید باقر نقوی نے ادارے کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور پرائمری اسکول کے قیام پر زور دیا تاکہ بچوں کے لیے ایک ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا جا سکے۔ جامعۃ المنتظر میں تقریباً 200 بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور اب اس کی نئی بلڈنگ بن رہی ہے، جس میں انشاءاللہ آئندہ کے لیے ایک بہترین یہاں پر کمیونٹی سینٹر بھی ہوگا، مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، اور یہاں پر جتنے بھی اسلامک پروگرام ہیں ان کے حوالے سے بھی بہترین پروگرام ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جامعۃ المنتظر کے پرنسپل سید امیر حسین نقوی اور معروف عالم دین علامہ سید فدا حسین بخاری نے لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا بندوبست بھی کریں۔ ستمبر 2020 سے برطانیہ میں تعلیمی قوانین تبدیل ہو جائیں گے اور تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے پرائمری اسکول کا قیام ضروری ہے۔ پورے علاقے میں ایک یونیک قسم کا پروجیکٹ ہے جس میں ایک سنڈے مدرسہ بھی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، دیگر پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور یہ زیر تعمیر بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی کی جو ضروریات ہیں اس وقت ایجوکیشن کی وہ پوری کی جائیں، اور اس میں آج جو مدرسہ بھی ہے، کل جب تعمیر ہو جائے گا تو پرائمری اسکول کا پروگرام بھی ہے، اور اسی طرح دینی مدرسہ کا بھی پروگرام ہے، حوضہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ملٹی پرپز بلڈنگ ہے اور مقصد ہے کہ اس میں تمام جو ضروریات ہیں ایجوکیشن کی ہمارے کمیونٹی کی، اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے۔ This is our idea for a full multi-purpose community in Manchester. Not only will we provide Islamic studies, primary school, Hawza education, but we also want a community for everyone, from the youth to the elder generation, where we want to provide a gym, a sports complex, a football pitches, a on-site cafeteria, like these sorts of ideas where we're not just one place for one sort of people. We want everyone to come together as the community under the umbrella of one vision. 92 نیوز سے گفتگو کے دوران شرکا نے بھی مقررین سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا۔ ادھر ایک اسٹوڈنٹ ہو جامعۃ المنتظر میں، اور مجھے ادھر پڑھنے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایوری سنڈے ہم ادھر پڑھنے آتے ہیں۔ تقریب میں کمیونٹی کے سرکردہ افراد سمیت لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ نشست کے اختتام پر لوگوں کی توازو لذیذ کھانوں سے کی گئی۔ یورپی رکن پارلیمنٹ شفق محمود کی جانب سے بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی۔ قرارداد پیش کرنے میں شفق محمد کے ساتھ رکن یورپی پارلیمنٹ پیٹراس آسٹروکس، کیتھرین فلبینین کیٹلان سے اور دیگر نے بھی حصہ لیا۔ قرارداد میں بھارتی شہریت قانون کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ قرار دیا گیا۔ دوسری جانب کشمیر کونسل EU کا کہنا ہے کہ یورپی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے شہریت قانون کے خلاف قرارداد پیش کیا جانا خوش آئند ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں کشمیر سیمینار ہوا، جس میں چیئرمین سینٹ خارجہ امور کمیٹی سینیٹر مشاہد حسین سید اور ڈاکٹر ماریہ سلطان نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار سے نارویجن وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔
तो ओस्लो में पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के ज़ेर एहतमाम तनाज़ा कश्मीर और उसके जनूबी एशिया में मुज़मरात के उन्वान से सेमिनार हुआ, जिसमें मुतअद्दिद नॉर्वेजन स्कॉलर्स और दानिशवरों ने शिरकत की। पाकिस्तान से चेयरमैन सेनेट खारजा अमूर कमेटी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कश्मीर सेमिनार में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, नार्वे मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के आगाज़ और मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। Which is changing the nature of Indian state and society, driven by the ruling party of India, and that has huge implications for India, for the region, and I'll come later to that. डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कहा, 5 माह से मकबूजा कश्मीर के लोग मुहासरे के दौरान सख्त मुश्किलात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। Unfortunately, at this moment, it's 9 million Kashmiris which have been buried alive. The territory stands intact. Nothing has happened to the territory. In the last 72 years, the territory was always divided between India and Pakistan. It is a question for the people of Kashmir. And the question is, are we going to close our eyes because it happened in Assam, Bangladesh did not speak because they had economic interests. तकरीब में साबिक नॉर्वेजन वज़ीर-ए-आज़म मांगने बेंदविक ने कहा, आलमी बरादरी को कश्मीरियों पर मज़ालिम रोकने के लिए भारत पर दबाव डालना होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर स्कैंडिनेवियन काउंसिल सरदार अली शाह नवाज ने कहा, पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में पेश करे। My experience is that India resists international engagement in this issue for obvious reasons. They say this is a bilateral issue. But now it's my impression, first they considered it to be an international issue and even for UN. So they said it's a bilateral issue, and I have responded to them, if it's a bilateral issue, why don't take a bilateral initiative to talk to the Pakistan? But they haven't. Now it's my impression that Modi has moved the issue to be a domestic political issue, not the bilateral anymore. So from international to bilateral to domestic, and this is a challenge. तकरीब के बाद सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और मारिया सुल्तान ने सफारत खाना पाकिस्तान ओस्लो में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात की। सफीर पाकिस्तान ज़हीर परवेज खान और वेलफेयर अताशी खालिद महमूद ने मेहमानों को नॉर्वेजन पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतारिफ करवाया। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के स्पेशल ज़िमनी इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट 7 से पाकिस्तानी नशाद अमरीकी डॉक्टर जे जेलसी कांग्रेसमैन बनने के लिए पुरुमीद हैं। उनका कहना है, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी उनका साथ दे तो वो अमेरिका में एक नई तारीख रकम कर सकते हैं। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर हसन जलेसी कांग्रेसमैन बनने के लिए पुरुमीद हैं। वो मुसलसल 2 बार मैरीलैंड असम्बली की रुकनियत हासिल करने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी समाजी शख्सियत मुनीर खटाना ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों का कहना है, डॉक्टर हसन जलीसी की जीत के रोशन इम्कानात हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो पहले पाकिस्तानी अमरीकी होंगे जो कांग्रेस के रुकन मुंतखब होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान अमेरिका के नेशनल इलेक्शन में इन्वॉल्व हो, ताकि वो मोर वोट्स और मोर नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सके। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर जे जलीसी के लिए, ताकि वो कांग्रेसमैन इलेक्ट हो सके और पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो अमेरिकन पॉलिटिक्स में। बहुत कम लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज बड़ा मज़ा आया है। आज देखा है, आज इनवाइट किया है लोगों को माशाल्लाह। 100 पीपल्स जो है उनका एक्सपेक्टिंग थी कि वो 100 पीपल आएंगे, लेकिन तकरीबन 300 से ज़्यादा बंदे 400-500 बंदा है यहाँ पे। ये इवेंट सिर्फ हमारी जो पहली नस्ल है, जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, तो हम अपनी आगे वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको हम एजुकेशन दें ताकि वो आगे आएँ। कल को यही लोग जो हैं ताकि इनमें ऐवानों में जाएं और यहाँ की आवाज़ जो है ना पाकिस्तानियों की वो ऐवानों में पहुँचा सकें। हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि यूएसए में हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए वो कांग्रेस के मेंबर सेलेक्ट हुए हैं, और हमारी सबके लिए दुआ है हम कि वो इंशाल्लाह ताला वो हमें कामयाब व कामरान करेंगे, और इसका सिला जो हमारी नस्ल जनरेशन तक ये जाएगा। पहले पाकिस्तानी कांग्रेसमैन होंगे, बल्कि पहले साउथ एशियन होंगे। इससे पहले 2 इंडियन हैं, लेकिन वो यहाँ पे पैदा हुए थे, तो ये पहले पाकिस्तानी होंगे
जो कि कांग्रेस के लिए इलेक्ट होंगे। और कांग्रेस के लिए ये बहुत अहम सीट है क्योंकि अलाजा कमन की सीट है, जो कि हम जानते हैं कि बहुत बड़े ना सिर्फ कि कांग्रेस में तो थे ही, लेकिन उनको बहुत बड़ा समाजी कारकुन भी माना जाता था। डॉक्टर साहब बड़े मौजूद तरीन उम्मीदवार हैं, 2 दफ़ा डेलीगेट रह चुके, डेलीगेट हैं, अभी भी डेलीगेट हैं वो। और इसके बाद इनका जीतना पाकिस्तानी अमेरिकन का जीतना पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की जीत है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जीत है। और इनका कांग्रेस तक जाना हमारे लिए बड़ी कम्युनिटी के लिए बड़े फख्र की बात है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हसन जलीसी का कहना है उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को अमरीकी ईवानों तक पहुँचाया। उनका कहना था अगर लोगों में मसाइल से आगही और शऊर नहीं होगा तो अमरीका में कामयाबी नहीं होगी। मेरे पीछे सैकड़ों अफराद का मजमा बैठा हुआ है और ये सब इसलिए आए हैं कि मेरी कैंपेन को सपोर्ट करने, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं अमेरिका की तारीख में पहला पाकिस्तानी अमेरिकन होऊंगा जो ये इलेक्शन जीतेगा। और इसकी हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन की जो प्रॉब्लम्स हैं फेडरल लेवल पे, उनको देखने वाला, उनको समझने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। मैं मेरीलैंड असेंबली का मेंबर 2 बार मुंतखब हो चुका हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं इस इलेक्शन में भी कामयाब होऊंगा। मैरीलैंड की निशस्त रुकन कांग्रेस के इंतकाल के बाद खाली हुई है, जिसमें नए रुकन के चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी और 8 उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी मैदान में उतारेगी। कामयाबी की सूरत में अमरीकी तारीख में डॉक्टर हसन जलीसी पहले पाकिस्तानी नयाद कांग्रेसमैन बन सकते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मुफ्ती फजल गफूर के एजाज़ में JUI मुत्तहिदा अरब अमारात ने शारजा में ज़ुहराने का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। JUI के फे मरकजी रहनुमा ने पार्टी के आइंदा लाइहा अमल के हवाले से आगाह किया। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद के रिपोर्ट में। JUI फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती फजल गफूर इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। शारजा के मकामी रेस्टोरेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात JUI फे के अमीर जाहिर नदीम की ज़ेर सदारत इनके एजाज़ में शानदार ज़ुहराना दिया गया। मुफ्ती फजल गफूर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि JUI फे के धरने के असरात आना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है, क्योंकि ये अवाम के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के मेहमान खसूसी मुफ्ती फजल गफूर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। PTI के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। JUI ने मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में सियासी जमूद को तोड़ दिया है। अब तो थोड़े थोड़े से जाहिर हो रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इस तरह की एक बड़ी मजबूत हुकूमत को गिराने के लिए कुछ न कुछ वक्त तो दरकार होता है। इंशाल्लाह 1-2 महीनों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। इस मौके पर अमीर JUI मुत्तहिदा अरब अमारात जाहिर नदीम का कहना था कि इस हुकूमत ने मुल्क को खोखला कर दिया है। अवाम को इनसे निजात दिलाएंगे, निजात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। इस हुकूमत को लाया गया है और पाकिस्तान को खोखला करने के लिए लाया गया है। अब पाकिस्तान की आवाम की हालत आपके सामने है और पाकिस्तानी आवाम इस वक्त बलक रही है, आटा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के अंदर चीनी के मसाइल हैं। हम चाहते हैं, हमारी जमात चाहती है, पाकिस्तानी और इदारों से हम गुजारिश करना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को जो है इन नाअहलों से निजात दें। JUI शारजा के मरकजी रहनुमा हदायतुल्लाह का इस मौके पर कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है। इसके पीछे आलमी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कामयाब होते नहीं देखना चाहती। मुफ्ती फजल गफूर साहब ने मुदल्लल गुफ्तगू किया और तफसीलन बात किया कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल है, मजहबी मसाइल भी है और आजकल महंगाई के बहुत अवाम बहुत सताया हुए हैं, तो उसने मुदल्लल बयान किया है उसके ऊपर। ज़ुहराना तकरीब में सुबह खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार किया। आखिर में मेहमानों की रवायती कबायली खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।